નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 4 of chapter 4 Heat, standard 7th science. In the last part we discussed the laboratory thermometer, isn't it? And so let me ask you, what is the range of laboratory thermometer? Of course it is minus 10 degrees Celsius to minus 110 degrees Celsius, isn't it? That what we discussed. As well as what we discussed, that if you want to measure the temperature of such substance, then how to keep the that laboratory thermometer, that is also we discussed, isn't it? So what it was, we should keep it straight. It should not straight means vertically, that as well as it should not be tilt. It should not touch the bulb of the thermometer, should not touch the surface of the beaker, like that. That what we discussed in the last part. Okay, now in this part there is activity 4.5. so let's discuss activity 4.5. Take some hot water. What? Hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. अब आप कैसे डिप करोगे? जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो वाटर के अंदर रखना है, ठीक है? Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. फिर आपको क्या करना है? You will wait for a while so that the mercury thread will become steady, and then you note the temperature. Now take out thermometer from water. देखो अभी ये ध्यान रखना है. Take out thermometer from water. Observe carefully that what happens. फिर गर्म पानी में से थर्मोमीटर को निकालना है. फिर वो जो थ्रेड होता है ना, मर्क्यूरी थ्रेड, उसको ऑब्जर्व करना है. एंड व्हाट हैपन्स नाउ? डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल. जैसे ही आप हॉट वाटर में से थर्मोमीटर को निकालते हो, on the second मतलब as soon as what will happen, the mercury level will begins to fall. This means that temperature must be read while the thermometer is in the water. तो कब टेम्परेचर रीड करना चाहिए? when the thermometer is in the water. Let it be any substance. Here there is a water, hot water or any other substance. लेकिन जब थर्मोमीटर वो सब्सटेंस के अंदर हो, तभी हमने वो जो रीडिंग है वो लेना चाहिए, ठीक है? Let's go further. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. फिर तो अब आपने जब क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर, एक एक्टिविटी की थी जिसमें क्या किया था, आपने खुद का टेम्परेचर मेज़र किया था. फिर उसमें क्या था, हमने थोड़ी देर के लिए वी कीप दैट थर्मोमीटर बल्ब अंडर द टंग, इजंट इट, फॉर 1 minute. देन आफ्टर वी टेक इट आउट ऑफ द माउथ ना, और फिर हमने वो रीडिंग किया था. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? अब दूसरा क्वेश्चन है, तो फिर ये बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर चलेगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं. Buzo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब वो हॉट वाटर में था अपना थर्मोमीटर, तो उसका रीडिंग लेना था. लेकिन जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला तो क्या हुआ, मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल.
वो क्यों? एक्चुअली देखो, अभी वो हॉट वाटर में था, अब वो बाहर निकाला तो वो एटमॉस्फेयर में आ गया, या तो इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, तो अब वो जो टेम्परेचर है उसमें आ गया, पहले हॉट वाटर के टेम्परेचर में था। तो जो मर्क्यूरी है उसका जो लेवल है वो बिगिंस टू फॉल, वो धीरे धीरे नीचे होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बुझो क्या बोल रहा है कि बुझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। अब क्या होगा, जब आपने जैसे ही हॉट वाटर में से वो थर्मोमीटर को निकाला तो अब वो क्या मेजर करने लगेगा, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो, जो कि कम होगा हॉट वाटर से, इसलिए जो मर्क्यूरी लेवल है वो फॉल डाउन होने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। एक्चुअली हमारा क्या क्वेश्चन था कि भाई बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो क्या बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं? तो क्या बोला, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो काम नहीं करेगा। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? अब जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, जो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसका जो मर्क्यूरी है, जैसे हम क्या करेंगे, पहले उसका रीडिंग करने के लिए, मेज़र करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए पहले थर्मोमीटर रखा, बाद में उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसमें से रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? चलिए उसका आंसर देखते हैं। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब फिर से आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? सी हियर देर इज फिगर 4.6। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक इन इट। लेट मी शो यू द किंक। सी हियर देर इज ए किंक। ओके, दिस इज ए किंक। ओके, तो ये जो किंक है वो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। तो व्हाट इज किंक? अ शार्प ट्विस्ट और कर्व। यहाँ पे कैन यू सी शार्प कर्व, अदरवाइज इट इज स्ट्रेट। ये जो थ्रेड वाला है पोर्शन, अदरवाइज इट इज स्ट्रेट, बट इन बिटवीन देर इज ए शार्प कर्व। ये जो शार्प कर्व है उसको क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। ठीक है, सो observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb in figure 4.6? Yeah, we have seen that. What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own। अब आपको पता चल गया होगा ये किंक क्या काम करता है। वो बीच में होता है, तो जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तो जो मर्क्यूरी लेवल है वो फॉल डाउन नहीं होगा। वाई? बिकॉज किंक इज देयर। इसलिए हम जब बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं और फिर उसका मेज़र करते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, फिर भी मर्क्यूरी लेवल विल नॉट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द किंक। नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया, इजंट इट? देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks। Mercury कैसा substance है? एक तो toxic है, okay, and it is very difficult to dispose of if a thermometer breaks। These days digital thermometers are available which do not use mercury। इसलिए अभी जो
थर्मोमीटर को यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, इन विच मर्क्यूरी को उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, विद दिस वी आर ending this part, and in the next part we will discuss further. Till that, watch this video 2 to 3 times. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.